sitting here, and I think for our whole family, it is such a big day, and you will probably not get the emotion, but we do. My papa, my dadu, miss my dadi a lot today. She would have been very proud. And we were sitting. I just want to share this story. We were sitting on number 9 and number 10. तो जब मैं बड़ी हो रही थी, हमारा पहले घर था फ्लैट नंबर 9 और फ्लैट नंबर 10B. Wow. So a journey from there, Hashru, to now. I think it's been very. I've seen all phases of my dad. Really achieve in life. रोना नहीं है, रोना नहीं है. मैं आज बहुत खुश हूँ कि आज वो ऐसे सक्षम हैं कि वो मुझे सपोर्ट कर पाते हैं, मेरे सारे सपने पूरे कर पाते हैं, जिसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ. आई थिंक मेरी लाइफ मेरे पेरेंट्स के लिए है. Such a rock star you already are, and after the rock and roll, full power. Your moment. मैं तो बात करने आया था, मुझे रुला दिया. एक बात हुई. ये अच्छी याद. अच्छी याद है. These are the things जितना cherish करो उतना अच्छा. Yeah. Okay. Yeah. So your question was. Your any moment which was like a touchwood moment, or I'm sure the entire movie is like that, but always पता है कई बार I from the interviews I've taken, there's always one particular movie like is this real, that this just happened, you know, that surreal feeling, you know, like. यार जहाँ से मैं आया हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, I think कहाँ शुरू किया था और इंशाल्लाह कभी खत्म ना हो ये जर्नी. तो I feel it's just taken so much to reach. Yeah, come on guys. It's not a sob story. I don't mean to make it like that, but I just feel like it's very important that I mention this. And you know, Saurabh, when I was signing the film, Saurabh, after I signed it, Saurabh came to me and he said, I had sent you a message about 6-7 years back, and that message was somewhere lost. I could not for some reason reply to him or didn't see it. And then he said, sir, मैं ये पिक्चर तब भी आपके साथ बनाना चाहता था. और 8 साल बाद he came and he said, it's still the same and I still want to make this film with you. So I feel कहीं ना कहीं I've done something right for him to have that faith in me still, and for him to believe that I could play and be his Krish to his Meera. So that's a very, it's a very big deal for me, because somewhere you kind of, in your day-to-day lives, in the journey that I've been having, I think somewhere you take it, कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो कि आप किस रीज़न से ये काम कर रहे हो और क्यों आए हो अपनी फैमिली छोड़ के. बट जब ऐसे लोगों का साथ मिलता है और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, when they have that confidence in you, it feels like you've done something right, you know. And it's just been such a beautiful journey. I wouldn't want to trade it with the world, you know. I think ऐसा कुछ moment नहीं है. Every now and then I touch myself and I'll be like, you know, I'll pinch myself and I'm like, is this really happening? And the one good thing that I feel, one of the many good things, of course, but our preparation was very solid. Our workshops were really good. I think the moment वो काम जो जितना था वो हम कर चुके थे फिल्म से पहले. Super ready. हाँ. And when we came to the set, it was all fun. We were just having fun with it. And one moment I'll tell you with Dhwani, जो आपका one of the part of your questions were when Dhwani was driving the car and this was a chase sequence. Or I was supposed to be nervous, but I didn't have to work hard for it because Dhwani was driving the car. And on top of that, विनोद सर की बेटी है और जिप लगा हुआ था गाड़ी में, पीछे से लोग डंडे लेके आ रहे हैं, बट ये गाड़ी चला रही थी और आई थिंक जिस हिसाब से इसने गाड़ी चलाई है हमारी जर्नी काफी स्मूथ रही है उसके बाद. कुछ नहीं है, मैंने बहुत बिकॉज व्हाट हैपेंड, मेरा साइकी ऐसा चल रहा था कि पीछे एक्चुअली लोग डंडे लेके आ रहे हैं, मुझे क्रिश को बचाना है, तो मैं that's why I was driving the way I was. You really did a good job. I saved you, buddy. Can you see the chemistry here? Watch in this movie. So amazing! Thank you so much, both of you. Thank you. Straight from the heart, not hiding your emotions.
to just see, you know, people just tell what they feel and, you know, just not try to hide it. So I'm very happy that... You know, this is the opportunity to say, because here, यहाँ पे जो first row पे लोग बैठे हैं, from Rishi sir to whole row actually, मेरे लिए emotions जाहिर करने का एक पहला समय है कि कितनी thankful हूँ मैं, from Lakshman sir to Karishma ma'am to Saurabh. मुझे नहीं लगता मेरी पहली पिक्चर ऐसी हो भी पाती अगर आप नहीं होते, और शायद होती भी नहीं. तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेरा साथ दिया, लाइक माय पेरेंट्स वुड, एंड बहुत मेरा ख्याल रखा. लाइक फिल्म बनाते हैं सर, कहाँ से प्रेरणा आती है? अच्छी फिल्म बनाओ, पैसे कमाओ, निकल जाओ. बट सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, कहाँ शुरू कहाँ खत्म से रिलेटेड. 25 साल पहले गोरेगांव में सहारा इंडिया नेटवर्क हुआ करता था, आपको पता होगा. वहां पे मैं कैमरा अटेंडेंट था, मेरी सैलरी थी 1500 रुपया, और मेरा भाई विनोद भानुशाली वहां पे मार्केटिंग में इंटर्न था, उनकी सैलरी थी 1200 रुपया. मेरा जैसे ये कैमरा अटेंडेंट था तो मेरे को ना एक बहुत ही फैंसी ये दिया गया था, AJW3. जब पता चला तो वो पियून के एक लेवल ऊपर था, असिस्टेंट जूनियर वर्कर 3. जहाँ पे हम सहारा के बाहर एक वड़ा पाव की गाड़ी थी, वहाँ पे वड़ा पाव खाते थे. उसके बाद भाई का रास्ता अलग हो गया, मेरा रास्ता अलग हो गया. मैं कैमरा अटेंडेंट से कैमरामैन बन गया, DOP बन गया, डायरेक्टर बन गया, फिर प्रोड्यूसर बन गया. भाई भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए. सौरभ के साथ जब ये फिल्म हमने लिखी थी, ऋषि विरमानी सर ने ये फिल्म लिखी है, सौरभ ने डायरेक्ट की है, और ये फिल्म की स्क्रिप्ट जब खत्म हुई थी तो मैं भाई के पास गया था और मैंने कहा था मुझे ये फिल्म धोनी के साथ करनी है. इन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया था, तो कहीं से कुछ प्रेरणा नहीं थी, कुछ नहीं. सिंपल था कि धोनी के जो म्यूजिक वीडियो देखे थे, मैंने उसको देखा था, उसका इनोसेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था हमेशा. कि इस कैरेक्टर को, छोटी सी बात है कि पापा ने शादी करने से पहले मुझे पूछा क्यों नहीं, उसके लिए इनोसेंस चाहिए था आंखों में, और वो धोनी के आंखों में था. तो इस तरह से सर हम जुड़े, और एक 25 साल पहले हम क्या करते थे और आज क्या कर रहे हैं, कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ अभी खत्म नहीं होने जा रहा है. बट थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड ब्लेसिंग्स. सीरियसली थैंक यू. हमने एक आदमी को हमारा रेडियो उसको उहू करने के पैसे दिए, वो जब से शुरू हुआ है उहू किए जा रहा है. हाँ. ग्लैमशैन, आपके बाएं साइड मेरा सवाल सौरभ से है. फिल्म का जो हमने ट्रेलर देखा है, एकदम कंप्लीट बॉलीवुड मसाला फिल्म हमको देखने में महसूस अभी हो रहा है, अच्छा लग रहा है. इसका टाइटल कहाँ शुरू कहाँ खत्म और फिल्म की कहानी, दोनों एक दूसरे को किस तरह से रिलेट कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं? सर वो तो आपको फिल्म देखना पड़ेगा वो समझने के लिए. बट सर ये जब आया था, पहले हमने शुरू की थी लिखना, इट वाज थॉट कि एक रोम कॉम है, बट वो कहीं भी हमने ऐसा कुछ नहीं दिखाया जहां आपको ऐसा लगे कि इट्स रोम कॉम. इट्स फुल आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म जिसमें एक्सीडेंटली दो लोग मिल जाते हैं. तो वो जब ऐसे भी कहते हैं कि कहाँ शुरू और कहाँ खत्म होने वाला है, उसके थॉट से आया था, और आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही आया था. हम लोग तो बहुत बिजी थे वो सब करने में, पूरा प्रोसेस वो करने में, एंड वी कुडंट हैव गॉट अ बेटर टाइटल देन दिस. नहीं, आई मस्ट से आपने सही सवाल पूछा सर, सौरभ ने भी सही जवाब दिया. जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एक लड़का गेट क्रैशर है, वो एक शादी का गेट क्रैश करता है, वहां पे एक लड़की को मिलता है, और फिर कहाँ से शुरू होता है और वो चीज खत्म कहाँ पे होती है. और ये जो टाइटल जो है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, वो हमारे राहुल नंदा सर है, ये उनके वहां से आया टाइटल है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल है. सो थैंक्स टू हिम फॉर दिस टाइटल. यस. से इंडस्ट्री में हमेशा बातें होती है नेपोटिज्म को लेकर, क्या वो टैग लेने के लिए आप तैयार हैं? सर मैंने अभी कहा वो नहीं आए, मैं गया था. वही सवाल तो नहीं चाहिए था, तभी तो पहले क्लियर किया था. जी इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है. आपने शुरुआत की थी कि वो भी लक्ष्मण जी ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा का कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो चुके हैं अब तक. तो
तो ये फिल्म भी लग रही है, मैं नेपोटिज्म नहीं बोलूँगी क्योंकि जो हमने इसका परफॉर्मेंस देखा और ध्वनि को तो हमने एकदम और छोटी थी बच्ची थी तब से देखा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल दूँगी कि ये नेपोटिज्म इस बात पे लागू होता है। लेकिन ध्वनि को लॉन्च करने में इतनी देर क्यों हुई और इस फिल्म को रिलीज करने की क्या स्ट्रेटेजी है, कितने थिएटर्स में आप एक्सपेक्ट? मैं देर से मिला था। लक्ष्मण आया नहीं ना, जब वो आया मेरे पास में उसने बोला कि एक्चुअली ना इससे पहले एक डायरेक्टर आया था, मैं सिर्फ अभी उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसने बताया था तब हम लोग रेडी नहीं थे, ना मैं रेडी था ना ध्वनि रेडी थी। म्यूजिक उसकी म्यूजिक में जो गाने हैं वास्ते ले जा रहे, ये सब बहुत मतलब 7 बिलियन व्यूज हैं एंड शी इज द ओनली गर्ल पॉप स्टार जिसके 3 गाने 1 बिलियन के ऊपर, मतलब 100 करोड़ के ऊपर। तो हम लोग उसी में खुश थे, बहुत खुश थे, मतलब यू नो दैट शी इज डन वेल फॉर हरसेल्फ एंड उसमें नेपोटिज्म भी नहीं आता ना, मतलब गाना है, गा रही है, आवाज सुन रहे हैं लोग और जहाँ शो कर रही है। बट जैसे लक्ष्मण ने कहा था, जिस दिन जब उसने बोला मेरे को, क्योंकि आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड्स, मतलब हम लोग इतने नीचे स्तर से ऊपर आए हुए दोनों लोग हैं ना कि हम ट्रूथफुल होते हैं एक दूसरे के साथ में, सीधा बात करते हैं, नो फिल्टर। तो जब उसने मेरे को बोला कि लक्ष्मण ने बोला कि यार विनोद देख ये पिक्चर है भाई एंड मेरे को दिख रही है ध्वनि, मैं एक भी दिन सेट पे नहीं आने वाला हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ चेक काटूंगा, बाकी सब पिक्चर तेरे खंधे पे, यू हैव टू लिव। एंड उस मैंने सेट पे मैं भी एक दिन नहीं गया, पूरी फिल्म सौरभ ने की है, मैं वो चेक जो बैंक में आ रहा था लेकिन इसने एक बात बोली मेरे को लक्ष्मण ने कि जब तू फिल्म देखेगा ना तो वो फिल्म लक्ष्मण उत्तेकर की लगेगी जो सौरभ ने इतनी ईमानदारी और शिद्दत से बनाया ना, आई मस्ट बी थैंकफुल फॉर यू। एंड सीरियसली फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट आई वांट टू टेल यू गाइस कि जिस तरह से आपने लुका छुपी, मिमी, जरा हटके जरा बचके को प्यार किया था, जिस तरह से आपको पसंद आई थी, ये वही शेड है। आप हंसेंगे, रोएंगे, चुप बैठेंगे, तालियां बजाएंगे, और एक फैमिली फिल्म है जो आप साथ अपने फैमिली के एंजॉय कर पाओगे, वही जॉनर है, वही फ्लेवर है, ये मेरा आपसे वादा है। वो बोलना वैसे from Dainik Bhaskar. My question is to Dhwani. Hi Same to hi. तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप क्या चाहती हैं ऑडियंस से कि आपकी फिल्म से वो सीख के जाए? सीख के जाएं। मैं चाहती हूँ आप एंटरटेन होके जाएं, मोर देन एनीथिंग एल्स। और एक छोटा सा मैसेज है, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि पापा ने मुझसे पूछा नहीं मेरी शादी फिक्स करने से पहले। तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि हम बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। हम लोगों की हम लड़कियों की लाइफ डिज़ाइन कर देते हैं। आई फील लाइक पेरेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ सेइंग कि हाँ तुम बेटा ये करना, उसके बाद तुम शादी कर लेना। तो ये कभी मेरे साथ नहीं हुआ, पर मैंने जब ये स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी जो मैं जब बड़ी हो रही थी, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ थी मेरे अराउंड जिनकी शादी हो जाती थी 20 साल के बाद। तो कभी मुझे वो समझ नहीं आया, पर फिर मैंने पापा से जाके पूछा तो ही सेड यस, ये होता है। आई वॉज वेरी लकी कि मेरे माँ बाप ने हर वक्त एट एवरी लेवल ऑफ माई लाइफ मुझसे पूछा कि तुमको क्या करियर चाहिए, तुम क्या पढ़ना चाहती हो, तुम शादी करना चाहती हो कि नहीं करना चाहती हो। दे ऑलवेज मेड श्योर दैट माई लाइफ इज माई डिसीजन एंड नॉट देयर्स। तो आई थिंक शायद ये अवेयरनेस क्रिएट होगी, और अगर कुछ लोग ये देख के अपना नजरिया थोड़ा सा बदलते हैं तो आई फील लाइक हम जीत जाएंगे। आपका ये किरदार बाकी फिल्मों से कितना अलग होगा? आई थिंक इससे पहले जितने भी मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, और मैंने इस तरीके की कॉमेडी नहीं करी, और ये पहली बार है। इट्स एन आउट एंड आउट सॉर्ट ऑफ कॉमेडिक कैरेक्टर जहाँ पर मुझे क्रिएटिव लिबर्टी दी गई है कि मैं कुछ भी जिस तरीके से मैं इसे निभाना चाहूँ मैं निभाऊँ। और इसका आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक सौरभ हियर बिकॉज ऑन सेट्स इट वाज सच अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। इट वाज नेवर लाइक कि यार सौरभ ने बोला कि यार ऐसे ही चाहिए मुझे। हम लोग पूछते थे, साथ में कोलैबोरेट करते थे, और करते करते आई थिंक पूरी फिल्म बन गई और हमें पता भी नहीं चला। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग डील। एंड और जहाँ से
जिस तरीके के कैरेक्टर्स मैंने किए वो थोड़े सीरियस टाइप के थे, तो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट ब्रेक फॉर मी ऑल्सो, वेयर आई कैन शो अ डिफरेंट शेड ऑफ माई टैलेंट, एंड आई रियली होप कि ये कि जिस तरीके की कॉमेडी करने की कोशिश की है वो एकदम ट्रांसलेट हो स्क्रीन पर और आप लोग को हंसाए, रुलाए और खूब मजे आए। Shruti Sinha this side from Bollywood Chronicle. Can you tell me where you You're there? are? Yeah. Yes, found you. Yeah. ट्रेलर में हमने देखा कि काफ़ी आपका बोल्ड अवतार देखने को मिला है, लेकिन अगर आपके रियल लाइफ की बात करें तो कभी ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ है जब आपको ऐसा कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ा हो? मैम आई फील अगर सर्कमस्टेंसेस सही हो और अगर आपको अपना फ्री विल दिया जाए तो कभी कोई रिबेल नहीं करेगा। तो आई डोंट थिंक वो बोल्ड था, आई थिंक वो डिसीजन सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीने के लिए था जो मीरा लेती है पिक्चर में, और शायद अगर मेरे साथ एक्चुअल लाइफ में भी ये हुआ होता तो मैं भी भाग जाती। क्या वंडरफुल। हेलो ध्वनि, आशिम यूथ सेंटर, राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। ट्रेलर फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, बहुत मज़ा आया, फिल्म देख के भी मज़ा आएगा। ये फिल्म एक एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, लेकिन ये जो हादसा होता है, घटना होती है, ये रियल लाइफ में भी बहुत जगह होती है। तो उनके लिए जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है, उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देंगे आप दोनों का पर्सनल ओपिनियन बताएं। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है, अगर छीन ली जाए तो घुटन होती है ना, बड़ा नेचुरल सा एक इमोशन है। तो आई थिंक फ्रीडम ऑफ चॉइस हर घर में, हर माँ बाप को, हर बच्चों को एक्सरसाइज किसी भी मोमेंट पे अगर ना उसका मौका दिया जाए तो वो एक इट डजंट मेक यू फील सफोकेटिंग। तो आई फील लाइक कि जो भी ये देख रहे हैं, जो भी जिसके लिए भी मतलब जितने लोग ये पिक्चर देखें और कहीं ना कहीं अगर उनके साथ ये उनकी कहानी है और कहीं ना कहीं इस कहानी से वो रिलेट करते हैं, तो आई थिंक इट्स वो सेल्फ इन्फ्लेक्शन जो है, इंट्रोस्पेक्शन वो होनी चाहिए हमारी कहानी को देख के। बाकी एंटरटेनिंग तो है, वी मेड इट यू नो फॉर पीपल टू जस्ट कम एंड एंजॉय द फिल्म, विच इज़ वाई द मैसेज इज कि एक बार पूछना ज़रूर चाहिए, ताकि आप उसके बाद आपकी मर्जी हो या ना हो, बट आपको एटलीस्ट एक चॉइस होनी बहुत ज़रूरी है, एंड दैट्स द ओनली थिंग दैट पेरेंट्स एंड योर चिल्ड्रन और एनीवन शुड बी आस्किंग वन अनदर, एंड उसके बाद आई थिंक एवरीबडी स्मार्ट इनफ टू टेक देयर ओन डिसीजंस देयर। धोनी आप सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? क्वेश्चन ये था कि रियल में भी ऐसे घटना होते हैं, ऐसे में आप जो भाग जाते हैं शादी से, उनके लिए क्या मैसेज है और उनके पेरेंट्स के लिए क्या सांत्वना देते हैं आप, पेरेंट्स को भी और जो भाग जाते हैं उनको भी? सर एक्चुअली मेरा आंसर सिमिलर होगा जो मैंने पहले बोला कि बहुत ज़रूरी है कि हम एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए भी। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, बट मेरे डैड मेरे लिए उन्होंने बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उन्होंने मुझसे कभी लाइक आई सेड ये नहीं कहा कि तुमको ये करना ही पड़ेगा। जब भी मैं बड़ी भी हो रही थी तो एक चीज़ होती है ना कि आपका खुद का दिमाग भी चलता है, फिर आप सक्षम हो जाते हो कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ और किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा, किसी को मेरी लाइफ मैप नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कोई भी कहीं से भी नहीं भागेगा, ना कोई रिवोल्ट होगा। सो आई जस्ट फील अगर पेरेंट्स ये फिल्म देख रहे हैं तो अपनी बच्चियों को सिर्फ पूछ लीजिए ना एक बार कि आप क्या चाहती हो, बस। एक छोटा सा कॉमन क्वेश्चन, आप किस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, पहले शादी फिर प्यार या पहले प्यार फिर शादी? कुछ भी कर सकते हो। मेरे मॉम डैड की तो शादी हुई थी फिर शायद प्यार हुआ था, है ना पापा? यार मतलब इट बी नाइस अगर अरेंज्ड लव मैरिज हो जाए। इट वर्क्स ईदर वे। झूठ बोल रहा है।